Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is session number 7, and in this session, we are at chapter number 14 of Styling's book. जो हमने स्टाइलिंग्स की बुक है उसका चैप्टर 14 जो है उसको हम रिव्यू करेंगे। इसमें हम जो रजिस्टर्स हैं यानी जो प्रोसेसर का इंटरनल्स है और उसके साथ साथ जो है वो पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो दिस सेशन जो है ये एक कंडेंस्ड वर्जन है चैप्टर नंबर 14 का, और आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर के अंदर अगर हम बात करें सो देयर इज ए मेमोरी in the form of registers, and there is a control unit, and also there is a mathematical component which is arithmetic and logical unit, and the chip has the system bus which has control data and address buses to interact with the outside world. मदरबोर्ड के ऊपर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके साथ, और इसी तरीके से जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सो द रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रोसेसर हैज टू फैच द इंस्ट्रक्शन एंड इट हैज टू इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन के जो आप कोड है वो क्या है, देन द फैच डेटा and then process the data and then write the data, that means the result. After processing there is a result and the processor then has to write the data back to memory or IO module. So to perform these tasks, processor has to have some internal memory. So this is another detailed view of a microprocessor in which we can see there is an arithmetic and logical unit with the states, the flag register, with the shift register, with the complement register, and the arithmetic and Boolean logic, as well as the internal bus. Also there is a control path in addition to the data paths, and there is a register file and control unit inside the microprocessor. इसके अंदर जो है वो कैश शो नहीं किया हुआ, कैश मेमोरी और उसका जो स्ट्रक्चर है वो शो नहीं किया हुआ, बट इट रिक्वायर्स सम इंटरनल मेमोरी. So there are two type of registers. One register is user visible or user can program them. And the other are the control and the status registers. We can also say they are partially programmable. Some of them are partially programmable registers. So the function of the user visible register is to enable the machine or the assembly language programmer to minimize the main memory references by optimizing use of registers, because processor have a very small amount of memory, so it has to this is the roles of the user visible registers. As you can see, the registers in the processor perform two roles. One is the user visible and another is the control and the status registers. और उनका रोल क्या है? They are used by the control unit to control the operation of the processor and by privileged operating system programs to control the execution of the program. So जिसमें थोड़ी देर में हम इनको डिटेल में भी देखेंगे. यूजर विजिबल रजिस्टर्स की जो कैटेगरीज हैं इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, पॉइंटर्स हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, और इसी तरीके से कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर के अंदर जैसे पैरिटी बिट है, जीरो फ्लैग है, और इसी तरीके से इंटरप्ट इनेबल डिसेबल. सबसे पहले यूजर विजिबल रजिस्टर्स जो है इसकी कैटेगरीज है. अगर आप देखें कि इसकी कैटेगरीज में जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स विच आर प्राइमरली होल्ड डेटा, एड्रेस रजिस्टर्स हैं, and also there are flags, the condition code registers. The
The bits are set by the processor hardware as the result of operations. But there is also a way to primarily work with the flag registers through assembly language program or through the operating system interaction. Now, the condition code registers have some advantages and disadvantages, but the purpose of this slide is to appreciate the role of the flag register in establishment of the control कंट्रोल जो है उसको शिफ्ट करने के लिए किसी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन कंट्रोल को जिसको हम ब्रांचिंग कहते हैं. So branching can be conditional, unconditional branching. So if we are talking about compare test instruction or conditional branching, so the role of the flag register is obvious. So I'm not going into the details of this slide, but only to appreciate the role of the condition codes or the flag register or different bits in the flag register to implement what is called the conditional branching. Now we are moving towards another important set of registers which are very essential when we are talking about the instruction execution. These registers are the program counter register, which contains the address of an instruction to be fetched, so that means the next instruction. The instruction register, the instruction most recently fetched. Memory address register, the address of the memory location, and the memory buffer register, which contains word of data to be written to memory or the word most recently read, जिनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होना है या जिनके प्रोसेस कर लिया गया है, क्योंकि प्रोसेसर हैज टू read data and then has to write data, ताकि वो जो इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑप कोड है उसको वो प्राइमरीली एग्जीक्यूट कर सके. इसको एक और तरीके से देखने या समझने के लिए एक स्लाइड इसके बाद आ रही है ब्लॉक डायग्राम की सूरत में. सो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जिसको हम फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं. सो कॉमन फील्ड्स ऑफ द फ्लैग रजिस्टर, दे आर द साइन बिट, 0 बिट, कैरी, equal, overflow, and similarly interrupt, enable and disable, and there is supervisory mode for the managed software, management software. So this diagram shows 3 different processors. One is the Motorola on the left side, in which we can see there is a number of data registers, there are number of address registers, and there is a program counter and also a status register. This diagram does not show all of the registers, but only those registers which are visible, and in the case of the program status registers, partially programmed. So in the case of 8086, because it forms the basis of the Intel processor, there is a categories of the registers: general registers, pointers and indexes, segment registers, and the program status registers. In the next version of the Intel microprocessor, from 386 to Pentium 4, we can see the architecture from 16-bit to 32-bit extension. And now we know that there is a 64-bit architecture of microprocessors is being implemented in new systems nowadays. Now इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करेंगे, इसमें फेच, एग्जीक्यूट और इंटरप्ट, इसको 2-3 डायग्राम्स की मदद से सीखेंगे. हाउ वी the instruction cycle, the fetch stage, read the next instruction from the memory into the processor, execute, interpret the output, and perform the indicated operation. Obviously, in execution, we need the operands as well. So after execution of instruction, the processor will check the interrupt. If interrupts are enabled and an interrupt has occurred, then save the current process state and service the interrupt. तो ये हम interrupts के बारे में पढ़ चुके हैं. ये एक कंप्लीट प्राइमरी इंस्ट्रक्शन साइकिल की एक स्टेट डायग्राम है, जिसमें हम पहले भी एक इसको पार्शियली रिव्यू कर चुके हैं.
इसमें इंटरप्ट के हवाले से और डाली है। इंटरप्ट फेच से स्टार्ट करेंगे, देन इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोड, आपको इंस्ट्रक्शन में प्राइमरी होना क्या है, देन ऑपरेशनल एड्रेस कैलकुलेशन, ऑपरेंड जो डेटा का एड्रेस है दे आर कैलकुलेटेड, एंड fetch data fetch cycle, there may be multiple operands, and after that there the operation of the, and after operation the store of the result. तो जब रिजल्ट स्टोर हो जाएगा देन इट चेक द इंटरप्ट, इफ देयर इज एन इंटरप्ट देन सर्विस द इंटरप्ट एंड देन अगेन कम बैक. So there are two branches, return for the string or the vector data if there is a primarily a loop, multiple execution data save and data operation, and in that case, in other case the instruction is complete and then each goes to the fetch the next instruction. So this is way how the work of a microprocessor continues, और जैसे प्रोसेसर ऑन हो जाता है it starts doing it. इस डायग्राम की मैं बात कर रहा था. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं उनके बारे में लिखा गया है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. प्रोग्राम काउंटर, the contents of the program counter are used to primarily fetch the instruction into the IR register. इसमें कैसे होगा ये कि the contents of the PC register are copied to the memory address register and they are actually appear on the address bus. कंट्रोल यूनिट इसमें काम कर रहा होगा. सो एड्रेस बस पे अपीयर हो जाएंगे और based on that address bus a memory location is selected. Once a memory location is selected, the memory output the data on the data bus, and then that data bus is primarily read into the memory, which is then copied to the instruction register execution. तो इसमें एक चीज जो है वो क्लियर करना चाहूंगा, वो ये कि प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द primarily the reference to the next instruction to be executed, whereas the instruction register contains the contents of recently fetched instruction primarily bits, जो कि इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है. यही लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले जो हम स्टडी कर रहे थे. Let me see if there is any. Okay, I have no question at this moment. Moving ahead. So instruction pipelining को समझने के लिए, because it is also a part of processor architecture to speed up the this fetch and execute cycle. If we see the simplified view is the instruction is fetched and no instruction is inside the microprocessor, and then it is executed and the result is then saved to the memory or sent to the IO device. इसको थोड़ा सा expand करें तो the instruction is first fetched and then the wait for primarily maybe there is some delay and this processor has to wait, or processor may decide to discard the instruction based on some condition, and when the instruction enters into the execution cycle or execution stage, then it again has to wait for the operands, and in case of new address encountered, then it again have to then fetch the instruction. So so there's a pretty much different cycles inside, and then if when the result is available, then result is then sent to the output, that mean memory or the IO devices. So there are other stages as well. So the additional stages are now identified. अगर हम इनको थोड़ा सा जो है वो read कर लें. So one is the fetch instruction denoted by FI. Read the next expected instruction into a buffer. This slide is important to understand the instruction pipelining and the few slides which are to come. So the fetch instruction, then the decode instruction,
and then the calculate operands. So because need to calculate the effective address, and we know there's a formula in which the offset and displacements are added, multiplied and shifted to find the effective address. So on the fetch operands, because instruction may contains different operands which need to be fetched from the memory or from the IO, then execute instruction and then write the operands. So these are important. First, it has to go through a stage FI, then DI, then CO, then FO, then EI, and then WO. So there will be a sequence. When an instruction is executed, then a sequence will be formed. अगर इस डायग्राम में आप देखें तो वही जो कोड थे लिखे हुए थे, fetch, decode, then compute, then again fetch, then execute, and then write. So one instruction entered, the instruction one, it has it needs 6 time units for its complete execution. So if we're talking about the next instruction comes in the second time slot, then the processor can primarily fetch, entered into the fetch part for the instruction number 2. If there is the pipeline is implemented. Pipeline means the additional circuits which can hold the data, and data may be the instruction, data may be the operands, so data may be the result. So in the next second slot, we have primarily one instruction one is in the decoding stage, whereas the instruction 2 is in the fetch stage. Similarly, in the third time unit, the first instruction is in the computation of addresses, CO part, and then whereas the second instruction is in the decoding, and similarly the third instruction is in the fetch stage. And similarly the process goes on, and as we can see, the ninth instruction is primarily entered into the time unit number 9, and it completes on the time unit number 14. So this way a 6-stage pipeline can be implemented. किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछने इस वक्त? Okay, any student want to answer our question at this point in time? जी कोई, या थोड़ा सा पास कर लेते हैं. तमाम जो स्टूडेंट अवेलेबल उनका मैं नाम भी लिख लेता हूं ताकि अटेंडेंस में सहूलत हो जाए. जी अनिल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर. इरम, आपसे सवाल है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर. इमरान वजाहत, आप बताइए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये पूछना चाह रहा था, ये जो आपने जो इंस्ट्रक्शन सेट बनाए हैं, तो ये 6 जो पाइपलाइनिंग में दी हैं, ये क्लॉक साइकिल है ये? असल में मतलब ये जो एमटी आपने रखे हैं, एमटी आपने ब्लॉक्स जो रखे हैं, जी जी, इसका ताल्लुक क्लॉक साइकिल से नहीं है. ये टाइम जो है उन्होंने जी सर. एक, अगर आप किताब ओपन करेंगे, आपका अच्छा सवाल है. पहले मैं आपका सवाल रिपीट करना. इमरान वजाद का सवाल ये है कि जो टाइम जो प्राइमरीली यहाँ दिया गया है, क्या इसका ताल्लुक जो सिस्टम क्लॉक है उससे है? ऐसा नहीं है. उसकी वजह क्या है? अगर आप बुक भी ओपन करेंगे तो उसमें भी इसका आंसर दिया हुआ है. उसमें लिखा हुआ है कि दीज इंटरवल्स आर नॉट फिक्स्ड इंटरवल्स. और क्लॉक के बारे में हमें पता है कि क्लॉक इंटरवल्स आर फिक्स्ड इंटरवल्स, बिकॉज इंस्ट्रक्शन 1 में नंबर ऑफ ऑपरेंड्स डिफरेंट हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन 2 में नंबर ऑफ ऑपरेंड्स डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक आप कोड है इंक्रीमेंट,
एक रजिस्टर में इंक्रीमेंट. So increment in register A is a complete instruction. So it requires less number of cycles, but same number of primarily the stages. Maybe जो उसमें जो फॉर एग्जांपल जो डेटा जो फेच का जो पार्ट है उसमें जो टाइम है वो ना होने के बराबर या जीरो हो. So that is possible. So there are irregular time spacing and it does not have any link with the system clock. हाँ, एक जो इंस्ट्रक्शन है, अगर आप इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स को स्टडी करें तो उसमें वो इंस्ट्रक्शन साइकिल का जिक्र करता है और उसको 4 क्लॉक साइकिल्स के साथ इनिशियली मैप करता है और उसके बाद उसमें वेट स्टेट्स का जिक्र करता है. और इसी तरीके से जो नेवर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो एक ही क्लॉक के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करने का क्या कहते हैं वो कैपेबल है. तो और माइक्रो कंट्रोलर्स की जो आर्किटेक्चर है वो आमतौर पे एक क्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की जो एबिलिटी है उनके अंदर मौजूद होती है. तो मेरे ख्याल में मैंने इमरान मुजाद के सवाल का जवाब दे दिया है कि these are not the fixed intervals and they do not have a link to the system clock directly. ठीक है. ओके, इमरान के बाद हम बात करना चाहेंगे कामरान से. कामरान जी, आपके ज़हन में कोई सवाल है? नो सर. ओके, अहमद शुएब, आपके ज़हन में कोई सवाल है? नो सर. सर मिड टर्म का गाइड कर दीजिएगा, मिड टर्म के बारे में. मिड टर्म का तो गाइड कर दें. मिड टर्म का शेड्यूल अभी तक तो आया नहीं है. जैसे ही आएगा यकीनन. उन्होंने वैसे तो मिड में कहा था, जून के मिड में. अभी अंडरग्रेड के जो मिड टर्म है उन पे काम हो रहा है. इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा. ओके विकी, आपके ज़हन में कोई सवाल है? सर डीन साहब ने कहा था कि 25 शायद मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं. तो अगर 25 जून से होने वाले तो कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे, कम से कम इतना ही गाइड कर दे कि हम लोग उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे. जी जी, वो टाइम आएगा तो गाइड कर देंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल गाइड कर देंगे. मैं आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? इमरान, आपको समझ में आ गया था आंसर? मैं पूछना भूल गया आपसे. जी सर, थैंक यू सर. ओके, वेरी गुड. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अब प्रोसीड करेंगे. अब ज़्यादा स्लाइड्स बची नहीं है तो वी आर टू कंप्लीट दिस सेक्शन. इसमें एक इंस्ट्रक्शन जो पाइपलाइनिंग है इसमें एक इशू को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है हमने. ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन लेट्स प्रोसीड. सर स्लाइड्स के बारे में पूछना है. सर जो ये रिसेंट लेक्चर्स हैं उनकी स्लाइड्स आप अपलोड कर रहे हैं क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे? जी जी, बिल्कुल कर देंगे. बिल्कुल, आज की भी कर देंगे इंशाल्लाह. ओके, ठीक है सर. आगे चलते हैं. ओके, पाइपलाइनिंग इज वेरी गुड. अगर हमारे पास जो है वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन ही आ जाती है जिसमें ब्रांच हो या जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है उसका शिफ्टिंग. अगर यहाँ देखें तो इंस्ट्रक्शन 3 इज ए कंडीशनल ब्रांच टू इंस्ट्रक्शन 15. तो इंस्ट्रक्शन 3 जो है वो जब पूरी एग्जीक्यूट होगी तो प्रोसेसर को पता चलेगा कि अब मैंने ब्रांच करना है इंस्ट्रक्शन 15 पे. लेकिन जब तक वो पूरी एग्जीक्यूट होगी उस वक्त तक जो है हम प्राइमरीली 8 टाइम यूनिट जो है वहाँ तक पहुँच चुके होंगे. और उसके बाद जो है प्रोसेसर हैज़ टू डिस्कार्ड इंस्ट्रक्शन 4 जो कि अभी कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुई है. इंस्ट्रक्शन 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी. इट हैज़ टू प्राइमरीली डिस्कार्ड एंड देन it has to start execution from primarily time slot number 8 and instruction number 15. So आप देखिए यहाँ पे जो है प्रोसेसर हैज़ टू वेट एंड हैज़ टू डिस्कार्ड द डेटा जो जिसमें डिफरेंट जो है वो स्टेजेस थी.
इंस्ट्रक्शन साइकिल थी। तो so this is a problem which is being faced by today's microprocessors as well. There are different methods to overcome this problem or reduce this problem. तो थोड़ा सा इसको अगर आप देख लें, नॉर्मल जो साइकिल होगा वो ये जो राइट साइड में नजर आ रहा है, पहले फेच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर कैलकुलेट होगा, फिर क्या ब्रांच है, नहीं है तो आगे चलेंगे, फेच, फिर एग्जीक्यूट, फिर राइट कर देंगे, फिर ब्रांच या इंटरप्ट है, अगर नहीं है तो ये नॉर्मल साइकिल चलता रहेगा। अगर एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस है, अगर सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ब्रांच आई है, तो ब्रांच आने की सूरत में क्या होगा, वो प्राइमरली प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करेगा और पाइपलाइन को एम्प्टी करेगा, और उसके बाद फिर दोबारा से ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे जो है वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ब्रांच या इंटरप्ट आया है, तब भी उस सूरत में प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करेगा और फिर जो है वो पाइपलाइन को एम्प्टी करके दोबारा से साइकिल शुरू करेगा। अब इसको समझना बहुत आसान है। जैसे मैं एक स्लाइड पीछे जाता हूँ, तो जब वो यहाँ पहुंचा था इंस्ट्रक्शन 3 के ऊपर, तो इंस्ट्रक्शन 4 को तो उसने फेच कर लिया टाइम स्लॉट 4 में, इसी तरीके से टाइम स्लॉट 5 में इंस्ट्रक्शन 5 को, टाइम स्लॉट 6 में, टाइम स्लॉट 7 में उसको पता चल गया कि प्राइमरली जो है वो एक गड़बड़ हो गई है, वो यहाँ तो मुझे ब्रांच लेनी है, यानी जो है वो नेक्स्ट जाना है। तो जब वो नेक्स्ट अब इंस्ट्रक्शन 8 की बजाय वो फिर इंस्ट्रक्शन 5 की तरफ रुजू करेगा, और ये पूरा जो प्राइमरली जो स्लॉट्स हैं जो स्टार्ट हो रही हैं 4 से लेके 5, 6, 7, यहाँ तक उसको वेट करना पड़ेगा, यानी यूँ समझे कि ये वेट करने में गुजर जाएगी। तो इसी में प्राइमरली जो है वो जो ब्रांच आएगी तो सूरत में ये फिर ये वाला पाथ ले लेगा। ओके, इसी चीज को थोड़ा डिफरेंट अंदाज में जो है वो एक डिफरेंट डायग्राम में जो है वो शो किया गया है, इन केस ऑफ नो ब्रांच एंड इन केस ऑफ कंडीशनल ब्रांच। सेम सिनेरियो है, लेकिन इसमें जो है वो टाइम स्लॉट्स को जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे शो किया गया है, और इंस्ट्रक्शन की प्राइमरी पूरी स्टेजेस यहाँ लिख दी गई हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन 1 एंटर होगी तो ये पूरी जो डायगोनल है ये यहाँ आगे 6 जो टाइम की जो यूनिट होगा या स्लॉट 6 टाइम्स में ये कंप्लीट हो जाएगी इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो हर एक जो टाइम जो यूनिट है उसमें कंप्लीट होती चली जाएगी, और इस तरीके से हमारे पास 19 यानी ये जो 9 इंस्ट्रक्शन है ये 14 टाइम स्लॉट में कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे केस में जबकि जो इंस्ट्रक्शन 3 है वो जब एग्जीक्यूट होने जाएगी तो प्राइमरली आप देखिए कि इंस्ट्रक्शन 3 जो है वो जब एग्जीक्यूट होने जाएगी तो अब माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि जो है वो इंस्ट्रक्शन 15 पे जाना है, तो वो जब इसको कंप्लीट कर रहा होगा तो इंस्ट्रक्शन 15 को वो स्टार्ट कर चुका होगा। ठीक है, इस डायग्राम में तो उन्होंने इसी तरीके से दिखाया है। तो ये वही डायग्राम है जो इससे पहले हमने देखी थी, उसी को एक डिफरेंट अंदाज में। अब आप देखिए जो इंस्ट्रक्शन 15 होगी वो फिर एग्जीक्यूट होगी जाके जो है वो 13 जो है इसके अंदर, यानी यहाँ जाके फिर अगर इंस्ट्रक्शन 17 और वो भी आ रही है, वो शो नहीं की गई, लेकिन अगर वो भी आ रही है तो फिर इस तरीके से, और इंस्ट्रक्शन 16 अगर लास्ट इंस्ट्रक्शन है तो इट विल आल्सो एग्जीक्यूट आफ्टर द 6 जो स्टेजेस हैं उनको कंप्लीट करने के बाद। तो होपफुली के जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है उसकी जो है वो हम समझ आ चुकी होगी हमें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। There is a area which is called branch prediction, because we know there is a processor has to wait, तो processor idle time is there, उसमें उसको फिर वो प्राइमरली हाउसकीपिंग भी करनी पड़ती है, जिसमें जो है वो डिफरेंट बफर्स जो है उनको उसे क्लियर करना पड़ता है। So there are two different set of based on static, it does not depend on the instruction, whereas another is a dynamic approach which depend on the instruction of code.
तो इसमें एक छोटी सी एग्जांपल हम कर लेते हैं। पहले तो इनका नाम देख लीजिए, प्रिडिक्ट, नेवर टेकन। पहले वो ये चेक करेगा, प्रिडिक्शन करेगा कि नेवर टेकन पे बेस कर रहा होगा, प्रिडिक्शन ऑलवेज टेकन पे, एंड प्रिडिक्ट बाय ऑपकोड, देन टेकन नॉट टेकन, स्विच, देयर इज ए स्विच प्राइमरली, यानी बाइनरी में फ्लैग होता है ना, if flag is 1 then do this, flag is 0 then do this, then there is also branch history table। तो ब्रांच हिस्ट्री टेबल की एक छोटी एग्जांपल करते हैं जिसमें वो 2 बिट्स जो है वो यूज कर रहे हैं। So there are when the branches primarily appear in the instructions, then one of the major problem is designing an instruction pipeline is the accuracy and a steady flow, assuring a steady flow for instruction to the initial stages of the pipeline। The primary impediment, yani barrier, is the conditional branch instruction। Until the instruction is actually executed, it is impossible to determine whether the branch will taken or not। ये तो एक सिनेरियो है जो कि आज भी है। ओके, हाँ, प्रोसेसर जो है वो प्रोग्राम का प्री एनालिसिस कर सकते हैं और प्रेडिक्शन के हवाले से। सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डीलिंग विद द कंडीशनल ब्रांच, मल्टीपल स्ट्रीम्स, लूप बफर, डिलेड ब्रांच, प्रीफेच एंड ब्रांच प्रेडिक्शन। इनकी डिटेल्स किताब में मौजूद है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट वी आर गोइंग इनटू द हिस्ट्री बिट्स। इस डायग्राम में 2 प्राइमरी बिट्स यूज की जा रही हैं और हिस्ट्री इज आल्सो बीइंग यूज्ड। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। सो एल्गोरिथम स्टार्ट्स एट द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, नेक्स्ट कंडीशन इंस्ट्रक्शन and predict that the branch has to be taken, and if the answer of the prediction is yes, then read the next instruction। If answer is no, then again read the next conditional branch instruction and then predict if it has to be taken or not। If the prediction result is successful, then again enter into the same loop on the left side, but if not, then there is a switching occurred, and switching occurred to the prediction which is not taken। So read next conditional branch instruction and predict not taken on the right side। Right side में देखें, it will then launch another sub algorithm that predict not taken, and if the answer is no, then again complete the loop, and then if yes, then again check। This is the second time it checks that read next condition, and if prediction not taken, the answer is no, then again remain on the right side, otherwise go on the left side। So it is primarily checking 2 times and then switching towards the sub algorithm part। So branch taken, 2 times checked, branch not taken, 2 times checked। So this prediction algorithm is checked 2 times for each case। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। डिसीजन प्रोसेस प्रिडिक्ट दैट द नेक्स्ट ब्रांच विल बी टेकन। ये देखें, ये डिसीजन प्रोसेस है, एक यहाँ पे भी है और इस केस में भी 2 है। इफ 2 सक्सेसिव ब्रांचेस आर नॉट टेकन, डज द एल्गोरिथम शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्लो चार्ट। तो अगर जो है वो 2 दफा आंसर नो आ रहा है, एक दफा यहाँ पे, एक दफा यहाँ पे, तो फिर इस सूरत में स्विचिंग होगी। नो वी आर एट द लास्ट मिनट, लास्ट की स्लाइड है। इसी चीज को जो है वो एक स्टेट डायग्राम में भी दिखाया गया है और बहुत आसान है कि प्रेडिक्शन टेकन यही रहेगा, वो अगर नॉट टेकन तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से तो वो स्विच कर सकता है नेक्स्ट में। और इसी तरीके से ये जो स्टेट मशीन है ये उसी फ्लो चार्ट को शो कर रही है। जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स जो हैं वो स्लाइड नंबर के हिसाब से हमने इसमें रख दिए हैं। अच्छा, हमारा सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। कोई लास्ट क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो? सर स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा बस। जी, स्लाइड अपलोड कर देंगे। इफ एनी क्वेश्चन, अभी एक साहब चले गए, उनका नाम अगर आप, अच्छा, मोहम्मद अली आए हैं।